سالار کا ذہن پہلے سے ہی ہانی کی باتوں سے الجھا ہوا تھا۔ وہ سعد کے بارے میں اتنی سادگی سے سب کچھ بتا رہی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اپنا غصہ یا کوئی ری ایکشن ظاہر نہیں کر پایا تھا، مگر کچھ تو تھا جو اس کے دماغ میں چبھ رہا تھا بری طرح سے۔ اور پھر اماں کی بات پر وہ مزید چڑھ گیا تھا۔ یہ آپ کو بیٹھے بٹھائے اس کی فکر کیوں ستانے لگی؟ یہ ہمارا مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ ارے کیوں نہیں ہے؟ ہانی اس گھر کی بہو بن کے آنے والی ہے، اس کے معاملات ہم سے الگ نہیں ہیں سالار۔ ٹھیک ہے، مگر بہتر ہوگا کہ آپ خود کو ان سب معاملات سے الگ سمجھے۔ اس کی سختی سے کہنے پر بھی وہ رہ نہ سکی۔ دیکھو سالار، ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بن ماں باپ کی بچی ہے، اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، اس کا حق اسے ملنا چاہیے۔ اماں کی بات پر وہ فوراً رک گیا تھا۔ کیا کسی نے آپ سے کہا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یا اس کا حق کھایا جا رہا ہے؟ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں، کون کہے گا مجھے بھلا؟ وہ گڑبڑا اٹھی تھی۔ تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے؟ دیکھو سالار بیٹا، زمانہ کتنا خراب ہے تم سمجھتے ہو نا، اور تم بھول گئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تم چھوٹے تھے اور میں جوان بیوہ، پوری دنیا ہمیں ہڑپ کرنے کو تیار تھی۔ وہ بھلے لوگ صحیح، لیکن کسی کی نیت کا کیا پتا؟ اچھا، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ اماں؟ وہ لوگ اس کی جائیداد رکھ لیں گے نا، تو رکھ لیں۔ اگر ہانی چاہے گی تو میں اس کی پائی اسے دوبارہ واپس دلوا دوں گا، مگر تب جب مجھے اس کا پورا اختیار ہوگا۔ ابھی آپ اس معاملے سے دور رہیں اور جو کام آپ کو دیا ہے صرف وہ کریں، یعنی کہ شادی کی تیاریاں۔ اس کا لہجہ بدتمیز ہوتا گیا تھا۔ تبھی اماں چپ ہوگی، مگر اپنے دل میں وہ یہ ٹھان بیٹھی تھی کہ ہانی کو اس کا حق دلوائے بغیر وہ پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ دل میں چور ہو تو انسان ویسے ہی میسنا اور گھننا سا بن کر نظر جھکا کر بیٹھتا ہے، جیسے کہ میں کھانے کی ٹیبل پر اس وقت ان دونوں کی باتوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی سنتا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ تم اس ویکنڈ پر ہانی کو لے کر شہر چلی جانا شاپنگ کے لیے؟ بالکل، اور جیلر کو میں نے گھر ہی بلا لیا ہے، ہانی پسند کر لے گی۔ نہیں، وہ سادگی پسند ہے، میں جانتا ہوں کیا پسند کرے گی، مگر تم اس کی پسند کے علاوہ بھی کچھ اور زیورات بنوا لینا، ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے بھی اس بات کا احساس ہے۔ دنیا ہر چیز پر نظر رکھتی ہے، ذرا سی کوئی کسر رہے گی تو کہیں گے کہ ہانی کے ماں باپ زندہ ہوتے تو یہ کرتے وہ کرتے۔ دنیا کی زبان کون پکڑ سکتا ہے، مگر مجھے لوگوں سے زیادہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کی فکر ہے۔ میں نے کل وکیل کو بلوایا ہے ہانی کی ساری پراپرٹی اس کے نام باقاعدہ مستقل کرنے کے لیے۔ ابو کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے، بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ ہم اپنی طرف سے ہی اسے کوئی پراپرٹی گفٹ کریں۔ شرمندگی کے مارے کھانا میرے حلق میں جیسے پھنس گیا تھا۔ ہاں بالکل ضرور کریں، ہماری اپنی بیٹی ہوتی تو کیا ہم اسے نہ دیتے؟ رضوان، آپ کو لوگوں کی پرواہ ہو نہ ہو، مگر مجھے ہے۔ میں ڈرتی ہوں جب کوئی ہماری نیت پر شک کرے یا ہم پر انگلی اٹھائے۔ امی کی بات سن کر اب مجھ سے مزید سننا میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ میں کھانا چھوڑ کر وہاں سے اٹھ گیا اور وہ دونوں حیرت سے مجھے جاتا دیکھ رہے تھے۔ شاید انہوں نے مجھے پکارا بھی ہو، مگر مجھ میں اب اور کچھ سننے کا حوصلہ نہیں تھا۔ میں اندھیرے لان میں آ کر بیٹھ گیا، جیسے سب سے چھپنا چاہتا ہوں، کسی کو نظر نہ آنا چاہتا ہوں، مگر اوپر دور کھلی کھڑکی سے جھانکتی ہانی کی نظروں سے میں کیسے بچ کر رہتا؟ رات بھر اوس میں بھیگنے کے بعد میں برآمدے میں نماز پڑھ رہا تھا جب وہ کانوں کے پیچھے دوپٹہ کرتی وہاں نکلی۔ دیر تک کھڑی مجھے نماز پڑھتے دیکھتی رہتی۔ جب میں نے دعا کے بعد ہاتھ چہرے پر پھیرے تو کہنے لگی، ارے واہ، آج تو بڑے اچھے بچے بنے ہوئے، تم نماز پڑھی جا رہی ہے۔ ویسے کیا مانگ رہے تھے تم؟ کچھ نہیں، جس سے مانگا ہے اسے سب پتا ہے۔ تمہیں مسجد جا کے نماز پڑھنی چاہیے تھی سعد۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر مجھے اللہ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا تھی۔ میں اٹھ کر سنجیدگی سے جائے نماز طے کرنے لگا تھا۔ کیا وہی بات جو ساری رات باہر اکیلے بیٹھ کر کرتے رہے؟ اس کے سوال پر میں چونک اٹھا اور پھر رخ بدل کر اس کی بات کو ٹال گیا، مگر وہ کہاں ٹلنے والی تھی۔ سعد، بتاتے کیوں نہیں کہ ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟
नहीं हनी, ना कुछ हुआ है और ना मैं होने दूंगा, समझी तुम। गुस्से में उसे झाड़ कर मैं अंदर चला गया और कल की तरह कमरे में बंद हो गया, उस वक्त तक जब तक मुझे सालार की अम्मा के आने की इत्तला नहीं मिल गई थी। देखिए, बगैर इत्तला के लिए मैं माजरत चाहती हूँ। एक शर्मिंदगी, खजालत और उलझन के साथ साथ उनके चेहरे पर एक परेशानी भी थी, जैसे वो अभी तक सोच रही थी कि उन्हें यह बात करनी चाहिए कि नहीं। अरे नहीं, आप कैसी बात कर रही हैं? यह आपका अपना घर है। अम्मी खटक तो गई थी उनके आने से और उनके अंदाज से, मगर वो जाहिर नहीं होने दे रही थी। अलबत्ता अब्बू ने फौरन इजहार कर दिया, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं रिजवान साहब, परेशान तो नहीं, अलबत्ता मैं ये सोच के हिचकिचा जरूर हूं कि आप मेरी बात का गलत मतलब ना निकालें। अरे ऐसा क्या ऐसी बात करें आप खुलकर बात करें। अम्मी, अब्बू, फूफू तीनों उनकी बात सुनकर संभल गए थे। देखें, उम्मे हानी आपकी बेटी है, मगर अब हमारा भी उससे एक रिश्ता जुड़ने जा रहा है। मेरा ख्याल है कि हमें यह हक है कि हम उसके मामलात में उसकी भलाई की खातिर, मेरा मतलब है कि अपनी बात करते हुए रुक सी गई थी, फिर चंद लम्हों बाद बोली, देखिए रिजवान साहब, रुपया, पैसा, जायदाद, ये सब बहुत ही बदलिहाज चीजें हैं। मोहब्बतों और रिश्तों में दरार पैदा हो जाती है इनसे, अगर बर वक्त इनके बारे में फैसला ना कर लिया जाए तो। उनकी बात पर अम्मी और अब्बू दोनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। मैं समझा नहीं आपकी बात, आप खुलकर बात करें। देखें, उम्मे हानी को अपने वालिदैन से विरासत में जो भी मिला है, आप लोगों ने बहुत ईमानदारी और खुलूस से अब तक उसे संभाला है, मगर अब वक्त आ गया है कि उसकी अमानत उसे दी जाए। उनकी बात सुनकर अम्मी और अब्बू तो यकीनन एक सन्नाटे में आ गए थे, मगर फूफू ने फौरन वावीला मचा दिया। हाय अल्लाह, तो आपके कहने का मतलब है कि शादी से पहले हानी की सारी जायदाद आपके हवाले कर दी जाए? गजब खुदा का। फूफू की आवाज बाहर मुझ तक भी आसानी से पहुंच रही थी और मैं दुआएं कर रहा था कि ऊंट उसी करवट बैठे जिस तरफ मैं चाहता था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे हवाले क्यों करें आप? खुदा ना हंसता, ये सब उम्मे खानी की चीजें हैं, उसके हवाले करें ना। वो गड़बड़ाकर फौरन वजाहत देने लगी थी। हाँ तो एक ही बात हुई ना, लेकर तो वो आपके घर ही आएगी, इतना उतावलापन। अरे हम कौन सा खा जाने वाले थे उसकी जायदाद को। महापारा फौरन फट कर बोली थी। महापारा चुप रहो, तुम बात करने दो मुझे। अब्बू के डांटने पर वो चुप करके भी गुस्से में रही थी। देखें भाई साहब, अच्छा हुआ कि उनकी नीयत वक्त पर सामने। महापारा, मैंने कहा ना चुप करो तुम, खामोश। और फिर वाकई एक खामोशी छा गई थी। अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी और बाहर तक कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं बेचैनी से तपती घास पर यहां वहां टहल रहा था। अंदर से सालार की अम्मा को निकलते देखकर मैं छुप गया था। उनके चेहरे के रिएक्शन से अंदर के माहौल का अंदाजा लगाने की कोशिश की, मगर धूप की तपिश से बचने के लिए उन्होंने चादर आगे तक खींच रखी थी। तभी ना चाहते हो मुझे उनकी गाड़ी गेट से निकलते ही अंदर आना पड़ा ताकि सही सूरत हाल जान सकूं। अम्मी और अबू शौक और अफसोस के आलम में थे, जबकि फूफू अपनी भड़ास निकाल रही थी। कमाल है भाई साहब, इतनी बड़ी बात भी है कि आप लोग, और उन्हें कोरा सा जवाब देने या आईना दिखाने के बजाय तसल्ली देकर रवाना कर दिया। हाँ तो और मैं क्या करूं? शादी की तारीख तय हो चुकी है और वो भी 20 दिन बाद की। ऐसे में किसी किस्म की बदमजगी का मतलब जानती हो ना तुम महापारा? अच्छा, तो भाई साहब जो उन्होंने कहा है उसका मतलब जानते हैं आप? उनकी नजर हानि की दौलत और जायदाद पर है। अरे कैसे खानदानी लोग हैं ये, उन्होंने तो इतना हल्कापन दिखला दिया। अभी से ये हाल है तो बाद में क्या करेंगे? लेकिन महापारा ये भी तो देखो, हानि का जो है उसको देना ही है हमने। अम्मी की बात को फूफू ने मक्खी की तरह हवा में उड़ाते हुए कहा। हाँ बात तो ठीक है भाभी आपकी, मगर कोई अपने मुंह से तो नहीं मांगता। अभी भी वक्त है, सोच लें इस रिश्ते के बारे में। नहीं, अब बिल्कुल भी वक्त नहीं, अब्बू ने कतई लहजे में कहा और मैं आगे बढ़ता बढ़ता रुक गया। यही खतरा था मुझे, और वो भी अब्बू की तरफ से। दुनिया को क्या कहेंगे हम कि उन्होंने हानि की जायदाद उसके नाम करने को कहा तो हमने रिश्ता तोड़ दिया, ताकि लोग समझे कि हम वाकई ऐसा नहीं करना चाहते। और क्या गारंटी है इस बात की कि जो भी दूसरा रिश्ता आया वो लोग लालची नहीं होंगे? मैं मदद तलब नजरों से फूफू को देखने लगा। उनका ही आसरा था,
अम्मी तो अपने सरताज की जुबान बोल रही थी। और वैसे भी बेटी का रिश्ता तो एक रिस्क ही होता है, लेना पड़ता है। आगे हमारी दुआएं और उसका मुकद्दर। बस तुमसे एक दरखास्त है, बल्कि मैं हाथ जोड़ती हूँ महापारा कि दादाजी से के सामने इसका जिक्र मत करना। उनकी जिद के आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो इस उम्र में है कि ज्यादा सोच विचार नहीं कर सकते। बस वो जज्बाती फैसला कर देंगे फौरन। तुम अपना हाल देखो, उनकी जिद की वजह से तुम अभी तक बैठी रहेगी। क्या किसी ने कुछ कहा, कुछ किया तुम्हारे लिए? हमेशा की तरह इस आखिरी बात ने फूफो की जुबान बंद कर दी थी। और बल्कि तुम्हें तो उम्मे हानी से भी कहने की कुछ जरूरत नहीं, वैसे ही बच्ची का दिल बुरा होगा। अम्मी की बातें सुनकर मैं पैर पर टख्ता अपने कमरे में जाने लगा। तीसरा दिन था, मुझे कमरे में खुद को सारा दिन बंद किए। सबके दिल में उल्टे सीधे वसवसे तो आने ही थे, मगर आज अम्मी, अब्बू और फूफो के दिल में पहले से इतने वसवसे थे कि उन्हें फुर्सत ही न मिली मेरे तेवर पर गौर करने की। एक हनी थी जो वक्फे वक्फे से आकर मेरे दरवाजे पर दस्तक देती, मुझे पुकारती और फिर मायूस होकर वापस लौट जाती। रात गए मुझे भूख ने सताया तो मैं दबे पांव निकला और हॉल के अंधेरे कोने से गुजरते गुजरते अम्मी अबू की बात सुनकर रुक गया। रिजवान, यही दुनिया है, यहां ऐसा ही होता है। अम्मी की आवाज में अफसोस था, दुख और बेयकीनी भी थी। मुझे अपना आप बहुत छोटा लग रहा है नायला। और अब्बू, उनकी आवाज में तो इतना डर था कि मैं अपनी जगह लरस कर रह गया। तुम्हें पता है नायला, उन लोगों ने मेरी नीयत और खुलूस पर शक किया है, और वह भी मेरी बेटी के मामले में। क्या मैं इतना कमजोर हूं कि अपनी ही बच्ची के साथ? नहीं रिजवान, बस करें, दिल पर मत लें ये बात। खुदा जानता है आपने की नेक नीयती को। हाँ, मगर मैंने खुद को आज से पहले कभी इतना कमजोर और बेबस महसूस नहीं किया। मैं टूट गया हूं उनकी बातों से नायला। अबू की बात पर मैंने अपने अंदर भी कुछ तड़क से टूटते हुए महसूस किया था। किचन तक जाते कदम वापस मोड़कर मैं लॉन में चला आया। कमरे में जाता तो शायद घुटन से मेरा दम निकल जाता। अबू, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आंसू में भीगी आंखें बंद करके मैंने दिल का बोझ हल्का करना चाहा। तुमने क्या किया है साद, बताओ मुझे। मुझे पता ही न चला कि कब हनी मेरे साथ आकर बैठ गई थी। मैंने गर्दन मोड़कर देखा और उसकी चुभती नजरों से बचने के लिए मैंने अपना रुख दूसरी तरफ फेर लिया था। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं किया मैंने। साद, झूठ मत बोलो तुम। मैं तुम्हारे सारे अंदाज पहचानती हूं साद, जरूर तुमने कुछ किया है। नहीं, बकवास, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हनी, न जानने की अहलियत है तुम में। कुछ तो किया है तुमने, जिसे छुपा भी रहे हो और इस पर पछता भी रहे हो तुम साद। कह दोगे तो दिल हल्का हो जाएगा तुम्हारा। नो वे, तुम्हें नहीं बताऊंगा मैं। मैंने रूठी नजरों से उसे घूरा और उसने गुस्से से मुझे घूरा। साद, बताते हो ये लगाऊं एक तुम्हें? ओह हेलो, मेरी दादी बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारा स्टूडेंट नहीं। मेरी बात पर वो मुस्कुराकर बोली, स्टूडेंट नहीं पर दोस्त हूं तुम्हारी। और मैं जानती हूं कि बेवकूफ़ी और जल्दबाजी में तुम बहुत सी उल्टी सीधे हरकतें कर जाते हो और फिर उन पर शर्मिंदा भी होते हो। अब सच सच बताओ, क्या तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया? क्या तुमने छुपाया है? उसने बड़ी हमदर्दी से मेरे कंधे पर हाथ रखा, मगर मैं उसके उल्टे सीधे अंदाजों पर चिढ़ा बैठा था। मैंने उसका हाथ झटक दिया। देखो साथ, तुम मुझे बता दो कि तुम्हें डांट से बचा लूंगी। क्यों? तुम मेरी कोई गॉड मदर हो, मेरी गार्जियन हो तुम। मेरे इस तरह धारने पर उसकी आंखों में एक वहशत सी भर गई थी। मगर मैं क्यों? सलाह रिसीवर कान से लगाए हैरत से पूछ रहा था। अगर आपने अपने लॉयर को बुलाया है अपने एक जरूरी काम से, तो मेरा वहां होना क्यों जरूरी है? उसके पूछने पर रिजवान को उसे सारी बात तफसील से बताना ही पड़ी। और दूसरी तरफ एक गहरी खामोशी थी और फिर खट से फोन बंद। उन्होंने फोन रखते हुए एक सांस भर के कहा, सालार को भी बुला लिया है मैंने। ये कदम उठाना तो है ही, मगर वो ये ना समझे कि उनके कहने पर करा हो। वकील के सामने उनके इल्म में आ जाना चाहिए कि मैं तकरीबन सारी कार्रवाई पहले से कर चुका हूं। आप सही कह रहे हैं रिजवान, उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि हमने तो अपनी प्रॉपर्टी में से उम्मे हानी को देने का भी फैसला किया है। इतने में सलार को आते देखकर वो उठ खड़े हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। तेवर की तरह उसका लहजा भी खुश्क और सर था। वालेकुम सलाम, आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। अजमी साहब भी आने वाले होंगे, तुम बैठो।
नहीं, मैं बैठने नहीं आया, और आप अपने वकील को भी आने से मना कर दें तो बेहतर होगा। बिला वजह आपका और उनका वक्त जाया होगा। सलार की बात पर वो बोले, क्या मतलब? देखिए, मैं किसी किस्म की सफाई नहीं दूंगा कि अम्मा ने ये बात आपसे क्यों की, क्या मकसद था उनका, मगर मैं अपनी बात कहूंगा कि मैं सालार आजम इस बात से इनकार करता हूं। अगर उम्मे हानी मेरी जिंदगी और मेरे घर में आएगी तो अपने वालिद की तमाम जायदाद इस हवेली में छोड़ के आना होगा उसे। उसके लहजे में पथरीली सी जुनूनियत थी। ये क्या कह रहे हो तुम सलार? तुम बैठो तो सही, आराम से बात करते हैं, अभी तुम जज्बाती हो रहे हो। मैं जज्बात को कभी साथ लेकर नहीं चलता। जज्बाती फैसले नापायदार होते हैं और मेरा यह फैसला अटल है। अगर हानि को यह जायदाद प्यारी है तो उसे मेरी उम्मीद छोड़नी होगी। उसने फैसला को नजरों से सामने हक्का बक्का खड़ी उम्मे हानि को देखा। बेटा, ये कोई इतना बड़ा इश्यू तो नहीं जिस पर तुम बिगड़ गए हो। ये उम्मे हानि का हक है जो उसे कल या आज तो मिलना ही है। हाँ, तो क्या आप लोगों को क्या लगता है कि मैं उसके किसी भी हक को अदा करने के काबिल नहीं हूं? उसने पलटकर उन सब से सवाल किया था। सलार, ऐसा नहीं है, मगर नहीं, मुझे बताएं आप, क्या उम्मे हानि को यह डर है कि मैं उसकी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं सकूंगा और इसलिए वह जायदाद की बेसाखियां साथ लेकर आना चाहती है? सलार बेटा, तुम बात को उलझा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मैं वो मसला सुलझा रहा हूं जो अम्मा ने उलझा दिया है। यह तो तय है कि उम्मे हानि मेरे घर खाली हाथ आएगी। रहा उसका हक तो आप उसे वो तब दीजिएगा जब मैं न रहूं। कम से कम मेरी जिंदगी में तो यह बिल्कुल मुमकिन नहीं। सलार की दो टोक बात पर उम्मे हानि तड़प कर बोली, सलार। और फिर रिजवान और नायला को देखते हुए नजरें झुकाकर बोली, इस जायदाद और दौलत की जरूरत मुझसे ज्यादा हमारे ट्रस्ट, स्कूल और हॉस्पिटल को है। मैं उसे वहां देना पसंद करूंगी। उम्मे हानि की बात पर सलार के होंठों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई थी। सुन लिया आपने इसका फैसला? अब हम क्या कर सकते हैं? नायला ने बेबसी से कहा। तभी सलार ने कहा, चलें, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो जाने के लिए मुड़ा और फिर रुक कर दोबारा कहने लगा, एक और बात, मैं चाहता हूं कि शादी 3 हफ्ते बाद के बजाय अगले ही जुम्मे को हो। क्या? मगर इतनी जल्दी? सिर्फ 5 दिन है दरमियान में। हाँ बिल्कुल, 5 दिन है और कोई मसला भी नहीं। मैं वैसे भी सादगी का कायल हूं और शादी तो है ही एक पर्सनल मैटर। इसमें सैकड़ों अफराद को शामिल करना जरूरी भी तो नहीं होता। अगले जुम्मे में निकाह के लिए चंद करीबी लोगों के साथ आप लोगों के पास हाजिर हो जाऊंगा। वो हतमी अंदाज में अपना फैसला सुनाकर वहां से चला गया। मैं मस्जिद से भागा आ रहा था सलार के आने का सुनते ही, मगर हवेली के गेट पर ही उससे मेरी टक्कर होगी। चंद लम्हों के लिए हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर सर्द निगाहों का तबादला करते रहे। उस वक्त कोई पास तो नहीं था जो मैं मुरवत के मारे उसका लिहाज करते हुए सलाम दुआ ही कर लेता। मेरी नजरों में उसके लिए जो भी था वो यकीनन खुशगवार नहीं होगा, मगर उसकी नजरों में मेरे लिए जो हसद, दुश्मनी और झुलसा देने वाली कैफियत थी, उसकी वजह जानने से मैं कासिर था। फिर वो लंबे लंबे कदम भरता गेट की तरफ खड़ी अपनी सरकारी गाड़ी की तरफ बढ़ा और मैं अंदर की तरफ। ये कोई तुक है भला? अंदर महापारा फुप्पो जली बैठी बातें कर रही थी और अम्मी परेशान थी। सिर्फ 5 दिन है जुम्मे में, इतनी जल्दी शादी की तैयारियां? सलार ने तो हद कर दी है। उनकी बात सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए थे। भाभी, आप लोग भी तो उसके सामने ऐसे ही बेबस होकर हथियार डालते थे। आप कह देते कि शादी अपनी असल डेट को ही होगी। अब मैं क्या करूं भाई, इन मामलात में मैं बिल्कुल कोरा हूं। पहली बार ऐसा फर्ज मुझे निभाना पड़ रहा है। अब्बू भी झुंझला कर बोले थे, मैं डरता हूं कि किसी किस्म की कोई कोताही ना हो जाए और कोई ऊंच नीच ना हो जाए। अब मैं ये तासुर कैसे दूं कि हम इतने गए गुजरे हैं कि 1 हफ्ते में शादी के इंतजाम तक नहीं कर सकते। मगर मैं अकेली, ये सब होगा कैसे? अम्मी की परेशानी में डूबी आवाज बहुत दूर से उसे आधी सुनाई दे रही थी और मैं बेजान कदम घसीटता अपने कमरे की तरफ जाने लगा। वाह भाभी, कैसे खुद को अकेली कहकर मुझे किनारे से लगा दिया, जैसे मैं तो कुछ हूं ही नहीं ना। लो, तुम दोनों अब असल मसले को छोड़कर अपनी बहस शुरू कर देना। अब्बू ने दोनों को डांट कर चुप कराया और शायद मुझे भी पुकारा था, मगर मेरे कमरे का दरवाजा एक बार फिर से बंद हो चुका था। अम्मा पर घबराहट और खौफ दोनों तारे थे, क्योंकि सलार था ही इतने गुस्से में।
अम्मा, आपने जिंदगी के हर मोड़, हर कदम पर मुझे मायूस और शर्मिंदा ही किया है। नहीं सालार, मेरी नीयत तो सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, मगर सालार ने उनकी बात काट दी। बस कुछ मत कहें, मैं सब जानता हूं आपने ये सब किस लिए किया। आप चाहती थी कि उसके आने से पहले ही उसके कदम जमे हो। आप खुद कभी मुझ पर हावी ना हो सके, उसके बदले उसे मुझ पर हावी होना देखना चाहती है ना। सालार की इस दर्जा बदगुमानी पर वो दंग रह गई थी। बेटा, मैं मां हूं तुम्हारी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी भला। हाँ, तो आपने आज तक जो भी किया है, क्या उसकी कोई वजह है आपके पास। गुस्से में टेबल को ठोकर मारकर वो आगे बढ़ गया था। मुझे शोएब के अलावा कौन मिलता जिसके सामने मैं अपनी हालत बयान करता। यार शोएब, जो करता हूं वो उल्टा होता जाता है। ऐसा लगता है कि किस्मत के हर चक्कर में बस मैं लपेटा जा रहा हूं। जितना सलार से उसको दूर करने की कोशिश करता हूं, तकदीर उनको और भी पास ले आती है। अब तो मुझे अपनी दुआओं पर भी भरोसा नहीं रहा। शोएब, मैं क्या करूं। और जवाब में शोएब ने उसे कुछ कहा था, मगर उसकी आवाज बाहर से आती ढोलक की थाप और गीतों की आवाज में दब गई थी। ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियां, और साथ ही मेरे हाथ मुर्दा से हो गए थे और फोन फिसल कर मेरी गोद में आ गिरा था। ये क्या हंगामा है भाई। महापारा जोड़े में बाल लपेटती हॉल में निकली थी, जहां हवेली की सारी मुलाजमाएं सलमा के गिर्द घेरा डाले बैठी गीत आलाप रही थी और सलमा के सांवले हाथ धपाधप ढोलक पर पड़ रहे थे। सोचा था शादी से हफ्ता पहले ढोलक रखूंगी, अब इतने दिन रहे नहीं तो सलमा को बिठा दिया ढोलक पर। कल से बुलवाती हूँ आस पड़ोस और बरादरी की बच्चियों को, सब रिश्तेदारों को। अब फोन पर ही दावत करनी पड़ेगी, खुद जाके कैसे दावत है, और भी तो बहुत सारे काम हैं। ये सोचे रिश्तेदारों को वजह क्या बताएंगी इतनी जल्दी शादी की। महापारा ने नायला बेगम के सुकून को देखते हुए जल कर कहा था। अरे महापारा, ये काम रिजवान के सर है, और तू क्यों रुक गई। सलमा, बजा ना, और जाके और भी लड़कियों को बुलाकर लाओ, शादी वाला घर है, पता चलना चाहिए भाई। और फिर सलमा की चंचल आवाज महापारा को उदास कर गई थी। उसने जोड़े में से बाहर निकली लिट को पीछे किया, जिसमें बहुत से सफेद बाल अब साफ झलकने लगे थे। वो बोझल कदमों से बाहर पलटने लगी थी। सलमा की करारी आवाज कानों के पर्दे चीरे दे रही थी। उम्मे हानी के कमरे के खुले दरवाजे के पास रुककर मैंने देखा, वो खिड़की के पास खड़ी अपनी चूड़ियों से खेलती हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए। मेरे कदम बेइख्तियार उसकी तरफ पड़े और दरवाजा बंद होने पर सलमा की आवाज और ढोलक की थाप मध्यम हुई तो वो चौंक कर मुड़ी। मुझे देखते उसके चेहरे की खुशी दुगनी हो गई थी। निकल आए ना तुम अपने कमरे से। मैं जानती थी कि अब तुम ज्यादा देर मुझसे नाराज नहीं रह सकते। और मैं खिंचता चला गया उसकी तरफ। देखो ना साद, मेरे हाथों में ये चूड़ियां कैसी लग रही हैं। उसने कलाई मेरे सामने की थी। बिल्कुल जहर लग रही हैं ये। मैंने अपने दिल की बात कही। तुम बहुत बुरे हो साद। हनी, मुझे पता ही नहीं था कि मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूं। मेरे लहजे में दर्द था और वो मेरे हर दर्द को महसूस कर जाने वाली कब से इतनी बेहस हो गई थी कि कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। लगते नहीं थे, अब भी नहीं लगते, मगर तुम हो गए हो बुरे। क्यों करे हो तुम ऐसा साद। क्यों तुम उखड़े उखड़े कटे कटे और कतराए रहते हो मुझसे। मिलते भी हो तो जली कटी बातें सुनाते हो। पता है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी को ठीक से महसूस भी नहीं कर पा रही। तुम इसलिए इस खुशी को महसूस नहीं कर पा रही थी क्योंकि तुम खुश हो ही नहीं हनी। अरे मैं क्यों खुश नहीं होगी। ये शादी मेरी मर्जी से जो हो रही है, लेकिन मेरी मर्जी तो नहीं है ना इसमें। और तुम्हें तो आदत है मेरे साथ रोने की, मेरे साथ हंसने की। तो जब मैं खुश नहीं हूं तो तुम खुश कैसे हो सकती हो हनी। वेल, ये तो मैं भी तुमसे पूछ सकती हूं कि तुम खुश क्यों नहीं हो। कैसे दोस्त हो तुम कि मेरी खुशी में तुम खुश नहीं हो। वो बिगड़ गई थी मेरे सच पर। बोलो ना साथ, ऐसे करते हैं दोस्त क्या दोस्त ऐसे होते हैं। मैं इसलिए खुश नहीं था हानी क्योंकि मैं दोस्त नहीं हूं हानी। मैंने उसकी आंखों में झांका तो वो कुछ कहते कहते रुक गई। उसकी आंखों में हैरत थी और बेयकीनी थी। हम दोनों के खामोश होने पर सलमा की करारी आवाज फिर से माहौल पर तारी होने लगी। हनी को न जाने क्या हुआ,
مجھے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اچانک گھبرا کر مجھ سے کترا کر وہاں سے جانے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور باقاعدہ گڑ گڑا اٹھا، ہنی پلیز مت کرو ایسا، مت کرو یہ شادی۔ سعد تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ ڈر کر اپنے ہاتھ چھڑوا رہی تھی مجھ سے۔ میں ہو جاؤں گا بہت جلد، لیکن میں بچ بھی سکتا ہوں۔ تمہارا تو پتہ نہیں سعد، مگر تمہاری ان الٹی سیدھی باتوں سے میں ضرور پاگل ہو جاؤں گی۔ آخر اس نے غصے سے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑا لیا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ پھر سے کھلا رہ گیا تھا اور خاموشی پر سلمہ کی آواز پھر سے راج کر رہی تھی، یہ والا سچے تلے کا ہے، سونے کے تار سے گندا ہوا، اب کہاں ہوتا ہے ایسا کام، دیکھو تو۔ ہانی کا دھیان کسی جانب رہا ہی نہیں تھا سوائے اس پہیلی کے جو اس کے دماغ میں کھلبلی مچا رہی تھی۔ وہ کسی کی نہ سن پا رہی تھی نہ سنا پا رہی تھی۔ اماں جانے یعنی تمہاری دادی نے بڑے چاؤ سے بنوا کے رکھا تھا، یہ حویلی کی بیٹی کے لیے ایسا ہی جوڑا بنتا ہے ہمیشہ۔ مہپارہ کے نصیب میں تو تھا نہیں، اب میں اسے تمہارے ناپ کا بنوا دیتی ہوں۔ وہ اسی بے دھیانی میں ہلکے سے دوپٹے کو چھو کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوا ہانی؟ مہپارہ نے تو دل جلانے والی کوئی بات نہیں کر دی، اسے بھی ذرا لحاظ نہیں کہ تم چند دن کی مہمان ہو یہاں پر؟ نائلہ کی بات پر وہ بولی، نہیں تائی اماں ایسا تو کچھ نہیں۔ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، ویسے بھی صبح سے گھر میں مہمانوں کی آمد جاری تھی، دور پرے کے قریبی سارے رشتہ دار وقفے وقفے سے آ رہے تھے۔ ایسے میں اس کے کھوئے کھوئے انداز کو کوئی بھی کسی رنگ میں لے سکتا تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر خالہ بطول، جو رشتے میں تو دادی لگتی تھی مگر پچھلی نسل کو دیکھا دیکھی یہ نسل بھی ان کو خالہ کہتی تھی، اور تو اور ان کا سگا پوتا علی بھی، ان کی تو ویسے بھی سب پر نظر ہوتی تھی۔ کل سے 10 بار تو مہپارہ پھوپھو کو کچوکے دے چکی تھی کہ سگی بھتیجی کی شادی پر منہ پھلائے پھر رہی ہے، اور وہ ببلی نیاز ماموں کی اکلوتی پٹاخہ، کتنی عادت ہے اسے سوال کرنے کی، یہ کیا وہ کیوں، توبہ۔ اچھا ہانی بیٹا، میں اب یہ زیور بھی تو تم دیکھ لو۔ تائیمہ یہ تو بہت بھاری ہے۔ دیکھو ہانی بچے، اب سب تمہاری پسند کے ہلکے پھلکے تو نہیں رکھنے نا۔ میں نے سیڑھیاں اترتے ہوئے بیزاری سے ہال کے پھیلاوے پر نظر دوڑائی، جیسے شاید وہ سب رونق اور ہنگامے کا نام دے رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی امی پکار اٹھی، سعد تم باہر مت نکلنا، تم ایسے اڑے اڑے پھرتے ہو سارا دن، یہ نہیں کہ پوچھ لو کہ کوئی کام ہی کرنا ہے۔ جی امی بتائیں، کوئی کام ہے مجھ سے؟ میں نے مارے بندے وہیں کھڑے کھڑے کہا، ساتھ ہی ایک ناراض سی نظر ہانی پر ڈالی، اس کی نظر میں مجھ سے زیادہ ناراضگی تھی۔ ہاں بالکل ہے، بہت سارے کام ہیں، ابھی تم نے اپنے ابو اور نیاز ماموں کے ساتھ سالار کے ہاں جانا ہے۔ امی کی بات سن کر تو مجھے جیسے آگ لگی تھی۔ کس خوشی میں؟ ارے سالار کا ناپ لینے۔ کس چیز کا ناپ امی؟ اس کی چوڑیوں کا؟ میں مزید تب کر بولا تو جہاں ہانی کی نظروں نے آگ برسائی وہیں اماں نے بھی مجھے تھپڑ مارا تھا۔ چپ بدتمیز، شیروانی کا ناپ لینے، اور یہ تو رسم ہے کہ اس کے لیے گھر کے سبھی مرد جاتے ہیں۔ اگر یہ رسم ہے امی تو سمجھے کہ میں مرد ہی نہیں ہوں۔ میں نے پریشانی میں انتہائی بے تکی بات کر ڈالی، جس پر ام ہانی باوجود خفگی کے بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ میں نے فوراً اس کے چہرے سے نظر ہٹائی، کہیں یہ ہانی میرا غصہ نہ کم کر دے۔ امی میرا مطلب ہے کہ میں نہیں جا سکتا ایسی بیکار سڑی ہوئی رسموں کے لیے، آپ اندازے سے لے لینا، ایکسٹرا لارج۔ میں نے غصے میں چبا چبا کر کہا۔ وہ ہنستے ہوئے پھر مجھے گھورنے لگی تھی۔ اتنے میں خالہ بطول کا چہیتا بلونگڑا علی فوراً اپنے نمبر بڑھانے کے لیے لپکا تھا۔ یہ اس کے بچپن کی عادت تھی خبیث کی۔ آنٹی آپ فکر مت کریں، میں چلا جاتا ہوں انکل کے ساتھ، کوئی اور کام ہے تو وہ بھی بتائیں مجھے۔ ارے علی بیٹا جیتے رہو تم۔ نہیں آنٹی یہ بھی کوئی بات ہے، بتائیں میں بھی کروں گا۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خواہ مخواہ فری ہونے لگا۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی، بلا وجہ چپکو ہونے کی۔ ویسے بھی ساتھ کوئی اکلوتا بھائی تو ہے نہیں، ہانی آپی کا میں بھی تو ہوں۔ اس بری طرح اس کا ہاتھ میں نے اپنے کندھے سے جھٹک کر اسے پرے دھکیلا کہ امی ہائے ہائے کرتی رہ گئی۔ میرا سب تل ملانا، سارا احتجاج بیکار گیا۔ مجھے جانا ہی پڑا ابو اور ماموں کے ساتھ سالار کا ناپ لینے، اور وہ چپکو علی حسب عادت ہمارے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ کسی کو احساس نہیں ہو رہا تھا کہ میرے دل پر کیا گزری ہے۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا میرا دل کٹ رہا تھا، اور سب اس کاٹ پیٹ اور اس چیر پھاڑ میں اپنا اپنا حصہ بھی ڈال رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی 1.5 گھنٹے بعد میں سالار کے گھر میں اس کے سامنے تھا۔ نہ صرف ساتھ جانا بلکہ اس کا ناپ لینے کی منحوس ذمہ داری بھی مجھے سونپی گئی۔
अली तो मजे से बैठा चाय में बिस्किट भिगो भिगो कर खा रहा था। मामू और अब्बू सालार की अम्मा के बोर तरीन खानदानी किस्से सुना रहे थे और सालार वो तो तन कर मेरे सामने खड़ा था, दोनों बाजू फैलाए। ऐसा लगता था जैसे वो जिंदगी में कभी भी मुस्कुराया नहीं था, और अगर कभी मुस्कुराने की जहमत करेगा तो चेहरे पर यहां से वहां शिकने फैल जाएंगी। नहीं, बल्कि शिकने भी नहीं, दरारें जैसे पत्थर में पड़ती हैं। पत्थर से दिल लगाना था तुम्हें हनी, खुद भी जो तुम पत्थर हो ना। सलार साहब, अब वो वाला बाजू भी आगे करें। दिल पर पत्थर रखते हुए मैंने कहा तो अब्बू ने फौरन टोका, ये सलार साहब क्या होता है? सलार भाई कहो तुम, बल्कि दूल्हा भाई कहो। अली ने भी 8वां बिस्किट चाय में भिगोते हुए लुकमा दिया था। अभी बने कहाँ है ये दूल्हा? जब बनेंगे तो देखेंगे। मेरे लहजे में जो चैलेंज था शायद उसे सलार ने भी महसूस कर लिया था, इसलिए उस वक्त उसने पूछ लिया, ये चैलेंज है या वार्निंग? और मैं जवाब देने के बजाय सर निगाह डालकर अब उसकी गर्दन का नाप लेने लगा और जानबूझकर गर्दन के गिर्द थोड़ा कस कर नाप लिया। सलार ने मेरे हाथ अपनी गर्दन से हटाए। रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं, बड़ा हौसला चाहिए इसके लिए। नाप लेने के लिए? नहीं, मेरे गिरबान तक हाथ डालने के लिए। अगरचे बड़ा करारा जवाब था मेरे पास, मगर फिर भी अब्बू की गुस्से भरी निगाह का लिहाज करते हुए मैं चुप रहा था। घर वापसी पर मेरी हाजिरी हुई दरबार में। बहुत बदतमीज, बदलिहाज और जुबान दराज हो गए तुम साद। कितनी बेमकसद बकवास की तुमने सलार के सामने। अगर वो माइंड कर जाता तो? हाँ तो अब्बू किया क्यों नहीं इसने माइंड? मैंने तड़प कर कहा तो उस पर मजीद मुझे डांट पड़ी। शट अप नालायक, मजाक का कोई वक्त होता है, और ये भी देख लेना कि मजाक किससे किया जा रहा है। वो एक सोबर, डिसेंट और संजीदा मिजाज इंसान है। खबरदार जो आइंदा तुम उसके सामने ओवर हुए तो। मैं सर झुकाए अब्बू की डांट खाता रहा। अली ने नमक मिर्च लगाकर सारा किस्सा सबके सामने दोहरा दिया था। ऐसा कैसे होता कि हनी तक बात ना पहुंचती? अब्बू से जान बचाकर मैं निकला तो वो रास्ता रोके खड़ी थी। हनी, मेरे रास्ते से हटो तुम, मैं बेरुखी से कह रहा था। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। जरा जो उस पर मेरी नाराजगी और बेकली का असर हुआ, वो अपनी ही खुशियों में मगन थी। ओहो, बड़ी बेताबी है। लगता है कि बबली से मिलने जा रहे हो, तभी ना? हाँ, ये बबली कहां से आ गई बीच में? वो ताई अम्मी कह रही थी उस दिन कि तुम्हारी और बबली की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। बकवास, बिल्कुल बकवास। मैं फौरन धाड़ कर बोला था, और उस बबली को तो मैं जान से मार डालूंगा। अरे बस बस साथ, तुम बनो मत। मुझे तो लगता है कि तुम खुद उस पर मरते हो। हाँ, और मुझे लगता है कि सलार कोई बड़ा ही छिछोरा इंसान है, जो जिसकी कंपनी में तुम भी वैसे ही हो गई हो। बस सलार का जिक्र, और वो भी इस अंदाज में करने की देर थी कि वो हत्थे से उखड़ गई। सारी मुस्कुराहटें उसकी गायब हो गई। कमाल है, मैं तुम्हारी बिला वजह की नाराजगी खत्म करने के लिए तुम्हारे आगे पीछे फिर रही हूं और तुम बदतमीजी कर रहे हो। लड़ना तो मुझे चाहिए तुमसे। पता चल गया है मुझे कि तुम सलार के घर में उनसे भी खासी बदतमीजी करके आए हो। हाँ तो करके आए हो, फिर क्या कर लोगी तुम? साद, शर्म करो तुम, बड़े हैं वो तुमसे। पता है मुझे कि वो बड़े हैं, और सिर्फ मुझसे नहीं तुमसे भी खासे बड़े हैं। साद, बस करो तुम, हटो परे तुम भी। मैं बदतमीजी से उसे सामने से हटाकर बाहर निकल गया था। बड़े दादा के कमरे में अब्बू और मामू न जाने क्या बातें कर रहे थे। ओह हाँ, अली ने बताया था। न्याज मामू बड़े शौकीन मिजाज इंसान थे। अब्बू के सिर्फ साले नहीं, कजन और बचपन के दोस्त भी थे, इसलिए बिना किसी झिझक के उनसे फरमाइश कर दी थी। रिजवान भाई, कोई गाने बजाने का भी प्रोग्राम रखा था है कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेहंदी तो सरासर सराना फंक्शन है। हम यहाँ मर्दान में महफिल गजल रखेंगे, और शादी वाले दिन बड़े मशहूर कवाल को बुलाया है। क्या कहा? गजल कवाल? हाँ ना, और सलार को भी गजल का काफी शौक है ना, इसलिए। अरे रिजवान भाई, कुछ हमारी पसंद का भी ख्याल कर लें। अब्बू मामू की बात समझ गए थे कि उनकी नीयत क्या है। यार देखो, बेटी का मामला है, बेटे की होगी तो सारे चाव पूरे कर लेंगे, पर अभी ये सब बुरा लगता है ना। अरे साथ तो अभी बच्चा है, उसकी शादी के वक्त हमारी उम्र कहां रहेगी रौनक मेले की। प्लीज रिजवान भाई, मान लेना मेरी बात।
यार न्याज, एक तो तुम्हारी रंगीन मिजाजी जो कि तू है, ठीक है तुम दादाजी को मना लो तो फिर करते हैं कुछ। अरे रिजवान भाई, दादाजी के जमाने से ही तो चला आ रहा है ये सब। सुना है उनके वक्तों में तो लखनऊ और बंगाल से हसीनाएं आया करती थी दिल जलाने को। अब सारा मामला समझ आया। ये दोनों उस वक्त किस मिशन पर काम कर रहे थे। मैं सीधा अंदर घुसा और मीसना सा बनकर बड़े दादा के पैर दबाने लगा। पुत्र हुण मुंह तो कोई फुट भी, हुण तेरा क्या मसला है? मेरे आने पर अब्बू परेशान होकर लिहाज और शर्मा शर्मी चुप कर गए थे, जिस पर बड़े दादा ने हंकारा भरा न्याज मामू ने कहा, बस दादाजी आपसे एक इजाजत लेनी थी। वो खुशी का मौका है और वो भी इतने अरसे बाद, तो कोई हलचल, कोई हंगामा, कोई रौनक होनी चाहिए ना घर में। हाँ तो ठीक है, कोई कसर मत छोड़ो। ऐसे आलीशान तरीके से शादी कराओ उम्मे हानी की कि सारा जमाना याद करे। जी बड़े दादा जरूर इंशाल्लाह, मगर हम नहीं, न्याज चाह रहा है कि कुछ नया, कुछ अलग होना चाहिए। हाँ तो फिर मैनू मार दो, कुड़ी दे ब्याह वाले दिन दादे दे कुल रख लो, सब तो नई गल यही होएगी। बड़े दादा से ही तो ली थी मैंने कड़वाहट। उनकी बात पर मैंने बड़ी मुश्किल से हंसी रोकी। नहीं दादाजी, अल्लाह ना करे, कैसी बदशगुनी की बातें करें, खुदा आपको लंबी उम्र दे। हमारा तो मतलब था कि कोई शुगल मेला, कोई रौनक, कोई नाच गाना होना चाहिए। हाँ तो बुला लो मिरासनों को। बड़े दादा की पेशकश पर न्याज मामू मुंह बनाकर बोले, अपनी दफा लखनऊ और बंगाल से हसीनाओं को बुलाते थे और हमारी दफा मिरासनों को बुला रहे हैं। दादाजी कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। सुना है आपके जमाने में मेहंदी की रात मर्दाने में महफिली सजती थी। अच्छा तो पुत्र सीधी तरह बोलना कि तू मुजरा कराना है। उनके साफ साफ कहने पर अब्बू मेरी मौजूदगी की वजह से थोड़े से शर्मिंदा हो गए और मुझे मौका मिल गया। तौबा तौबा बड़े दादा, आप ये सब होने देंगे? ये सब तो गैर शरई और गैर इस्लामी काम है। हाँ तो बरखुरदार, तुम इतने शरई कब से होगे? अब्बू को मेरे दखल अंदाजी करने पर गुस्सा आ गया था। ठीक है तो कह रहा हूं, इन सब बुराइयों की जरूरत ही क्या है? सादगी से भी तो हो सकता है सब कुछ, सुन्नत के मुताबिक, न जहेज न दिखावा, मस्जिद में शरबत और चौहारों पर निकाह। साद पागल हो गए हो क्या तुम? लोग क्या कहेंगे? अब्बू को मेरी बेवक की बातें बहुत बुरी लगी थी। आखिर कमिश्नर आ रहा है बारात लेकर, उसे मस्जिद में बिठाकर चौहारों पर टरखा देंगे तो दुनिया क्या सोचेगी? लीजिए बड़े दादा, इससे तो साफ जाहिर है कि वो लोग ये शादी जहेज और शोर शाह के लिए कर रहे हैं। अब आप खुद सोचें, ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ना ठीक है कि नहीं? मेरी बात सुनकर अब्बू का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। साद, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और रिजवान चुप कर, तू झड़क मत मेरे साथ शहजादे को, और मुंडा बिल्कुल ठीक है रहे। और न्याज ते रिजवान, फड़ो कलम, दवात तक कागज और लिखो मेरी वसीयत। दादा की बात पर मामू हैरत ज़दा रहकर बोले, दादाजी वसीयत? हाँ आहो वसीयत, ये निकाह मस्जिद में होगा। पर दादाजी वो दोनों हैरत ज़दा होकर उठ खड़े होते और मैं ज्यादा जोर शोर से उनके पैर दबाने लगा था। आहो रिजवान, न नाच था न गाना, न शोर था न शराबा, न जहेज न मेहंदी, बस शरबत त निकाह ते चौहारे। यही है मेरी वसीयत, ऐसे ही होना है ब्याह मेरे साथ का। उन्होंने बात मुकम्मल करके मोहब्बत से मुझे देखा तो मैं सटपटा गया और मेरे हाथ उनके पांव पर जम से गए। दादाजी मेरा निकाह? आहो, अपने पड़पोते का निकाह, अपने शहजादे का ब्याह मैं ऐसे ही करूंगा जैसे वो चाहता है, चाहे दुनिया कुछ भी सोचे। तुसी लोग अभी कर लो अपने शौक पूरे, सजा लो मुजरे, बस मेरे साथ की शादी बरकत वाली होगी, साथ की नल है ना साथ पुत्र। शक्ल देखने वाली थी साथ की, लगता है उसे अंदाजा हो गया है कि ताई अम्मी के और बबली के हवाले से क्या सोच रही हैं। उम्मे हानी अपने कमरे में सालार से फोन पर बात कर रही थी और हस्बे साबक को साथ के जिक्र पर उलझन सी महसूस कर रहा था। कसम से भागता है वो बबली को देखकर सालार। अच्छा, और भागकर कहां जाता है? सालार के चुपते हुए सवाल को अपनी सादगी में महसूस न कर सकी और अपनी धुन में बोल उठी, वैसे मैं सोच रही थी कि कैसा लगेगा वो दूल्हा बनकर। हानी, तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त तुम्हें अपने होने वाले दूल्हा के बारे में सोचना चाहिए? हाँ बिल्कुल सलार, वो तो है, पता है साद,
यार तुम्हारे पास साद के अलावा कोई बात करने को नहीं है क्या? बिलाखिर वो गुस्से में बोल गया तो हनी ने खुद को संभाला। कमाल है सरार, मैं नहीं बताती तो भी आप गिला करते हैं, बात करती हूं तब भी गुस्सा होते हैं। कि शादी के बाद भी आप यूं ही मुझे बिला वजह डांटा करेंगे? हाँ बिल्कुल, शायद इससे भी ज्यादा। वो संजीदा होकर बोल रहा था मगर उम्मे हनी ने उसकी बात को हल्के फुल्के अंदाज में लिया। अरे वाह, आप मजाक भी कर लेते हैं। मैं सच कह रहा हूं हानी, अभी 2-3 दिन है, तुम सोच लो एक बार फिर। उसकी बात पर वो सच में रोने वाली हो गई थी। प्लीज सलार, ऐसी बातें तो मत करें, मुझे घबराहट होती है। अभी से? अच्छा सुनो, घबराहट हद से बढ़ जाए तो क्या करती हो तुम? क्या तुम रो देती हो? उसकी चुप पर उसने खुद ही सवाल और खुद ही जवाब दिया था। सलार बस करे ना, क्यों डरा रहे मुझे आप? ये क्या मजाक है भला? दरवाजे के करीब आने पर मुझे उसकी रुहासी आवाज सुनाई थी तो मैंने धड़ाधड़ दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हे अंदर खामोशी रही तो मैंने बुलंद आवाज में कहा, मैं हूं, दरवाजा खोलो हनी। चंद सेकंड बाद वो बाल जोड़े में लपेटती ही चेहरे पर हैरत लिए दरवाजा खोल रही थी। उसने एक नजर मुझे देखा और फिर मुड़कर घड़ी को, जो रात के 2 बजा रही थी। साद, तुम इस वक्त? हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है हनी। पर इस वक्त साद, सुबह बात करते हैं ना, अभी बहुत देर हो चुकी है। नहीं हनी, देर नहीं हुई, लेकिन अगर मैंने कुछ न किया और कुछ न कहा तो वाकई देर हो जाएगी। साद, ऐसी भी कौन सी बात है? हनी, तुम ये शादी क्यों कर रही हो? क्यों, किस लिए? हाँ, मैंने बिना किसी लगी लिपटे के फौरन अपनी बात कह डाली तो मेरी बात पर वो शदीद गुस्सा होकर बोली, साद। सीरियसली हनी, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। मैं मिला हूं सलार से, वो कितना बड़ा है तुमसे, उम्र में भी, और बहुत ही सड़ियल और खड़ूस इंसान है। एक बार भी हंसते नहीं देखा मैंने उसे। मैं एक एक करके सलार की सारी खामियां उसे बताने लगा। हाँ तो क्या हुआ? मुझे वैसे भी हर वक्त हंसने वाले मर्द बिल्कुल पसंद नहीं। हनी की बात पर मैं लम्हे भर के लिए चुप हुआ था, फिर उसके हाथ थाम कर मैंने कहा, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया साद? यही है कि हनी, तुम्हें अपनी बात करते करते मैं रुक गया था। सख्त बेबसी थी, कैसे समझाता उसे कि वो एक बार कहती तो मैं उम्र भर के लिए हंसना भूल जाता, सिर्फ उसके लिए। साद, मुझे बताओ तुम्हारे साथ मसला क्या है? उसने अपने हाथ मेरे हाथ से छुड़ाकर मुझसे पूछा। मेरा मसला यह है कि तुम ये शादी क्यों कर रही हो हनी? मत करो शादी, तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ ऐसा? सलार के साथ शादी के बारे में सोचते तो मैं एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? मेरी मोहब्बत का कभी सोचा तुमने कि मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगा? कैसे सह पाऊंगा, कैसे रह पाऊंगा मैं तुम्हारे बगैर? वो हैरत से मेरा चिल्लाना, मेरी आंखों का डबडबाना देखती रही। क्यों, किस लिए, क्या बनेगा मेरा, कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बगैर? मैं गुस्से में ये सब बातें कर रहा था कि एकदम झाग की तरह मैं ठंडा और शांत होकर रह गया जब उसके दोनों हाथ मेरे रुखसारों पर ठहर गए थे। मेरा चेहरा हाथों में लिए वो अब नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। साद, इतना चाहते हो तुम मुझे? उसके सवाल पर मैं सिर्फ हाँ में गर्दन हिला गया था। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं साद, बहुत ज्यादा। उसकी बात पर मैं हवाओं में उड़ने लगा बिना परों के। मगर फिर भी साद, जाना तो होगा ना मुझे, मैं रुक नहीं सकती। मगर क्यों हनी, क्यों? साद, तुम बच्चे तो नहीं हो जो समझ ना सको। भला मैं सारी उम्र यहां कैसे रह सकती हूं? हनी ने झुंझलाकर कहा। तुम रह सकती हो हनी, और बच्ची तो तुम भी नहीं हो जो ये ना समझ सको कि कैसे रह सकती हो। शायद अब की बार मेरे लहजे में कुछ था जो वो चौंक उठी। उसके हाथ धीरे से मेरे चेहरे से फिसल कर नीचे आ गिरे, जो मैंने फौरन ही दोबारा थाम लिए और अब बाकायदा गिड़गिड़ाकर उसकी मिन्नत करने लगा। हनी प्लीज मत करो ये शादी, तुम, वो शख्स बिल्कुल भी तुम्हारे काबिल नहीं। तुम जल्दबाजी में फैसला करी हो, तुम इससे कोई मोहब्बत वहब्बत नहीं, ये सब वहम है तुम्हारा। मना करो इस शादी से। मेरी बातों पर वो झंझला उठी थी और दोबारा अपने हाथ छुड़ाकर 2 कदम पीछे हटी। तुम पागल हो गए हो साद, क्यों करे तुम ऐसी बातें? अब मैं खुद को मजीद समेट के नहीं रख पा रहा था, तभी मैं रो उठा और उसके सामने बाकायदा आंसू से रो पड़ा। तुम्हें क्यों नहीं समझ आता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं हनी? तुम क्यों नहीं समझ पा रही?
वो जो नाराज उखड़ी उखड़ी सी 2 कदम परे हट गई थी, मेरे आंसू पर तड़प उठी और फौरन आगे बढ़कर मेरे आंसू साफ करते हुए खुद भी रो पड़ी। बुद्धू, मैं सब समझती हूँ, सब पता है मुझे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसकी बात पर मैं रोना भूल कर उसे हैरत से देखने लगा। तुम नहीं चाहते ना कि मैं यहां से जाऊं, तुमसे दूर हो जाऊं, मगर साद सलार कि मेरी जिंदगी में आने के बाद तुम्हारी हैसियत तो बदल नहीं जाएगी। तुम ही रहोगे मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरे बचपन के साथी। प्लीज तुम ऐसा मत करो। सलार के बारे में ऐसे बातें मत कहा करो, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है। मैं जानती हूं कि तुम उसे इसलिए पसंद नहीं करते कि वो तुम्हारी दोस्त को तुमसे दूर लेकर जा रहा है, मगर साथ यकीन करो, उससे शादी के बाद भी मैं तुमसे। उसने ये बात करके मुझे मायूसी के ऐसे अंधे कुएं में गिराया कि दोबारा निकलने की उम्मीद भी मैं खो बैठा। बस हनी, तुम्हें तो वाकई सब पता है। तुम तो सच में मेरे दिल के हाल से वाकिफ हो। मैं रूठ के जाने के लिए मुड़ा था, मगर अभी दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि वो दौड़कर लपकी और मुझसे लिपट गई। नहीं साद, मत जाओ, यूं नाराज होके तो नहीं, मुझे खुशी खुशी विदा करो, मैं तुम्हें उदास नहीं कर सकती। मेरे बाजू उठे और उसके गिर्द मजबूती से हायल हो गए। मैंने उसके कंधे पर सर रखा और कहा, और मैं तुम्हें जाते हुए भी नहीं देख सकता हनी। तभी फिजा में बांसुरी की आवाज गूंजी। मैं मजीद खो सा गया और उसकी कमर के गिर्द अपनी गिरफ्त और सख्त कर दी, जैसे उसे सबसे छुपाकर मैं अपने अंदर समोना चाहता था। मगर मेरे लम्स में मेरी उसे खुद में समोने की शिद्दत में कुछ ऐसा था कि वो डर गई। मैंने उसकी तेज होती धड़कन और घबराहट को महसूस किया था। अगले ही लम्हे वो तड़प कर मुझसे अलग हो चुकी थी। मैंने फिर से उसे खुद के करीब करना चाहा तो उसने डर कर मेरे हाथ झटके और फिर पीछे हट गई। मैं किसी ख्वाब के टूटने के आलम में उसे बेखुद होकर देख रहा था, और वो तो डर कर जैसे किसी डरावने ख्वाब के ज़ेरे असर थी। अचानक वो फिर से 2 कदम आगे बढ़ी और पूरी ताकत के साथ मुझे अधखुले दरवाजे से बाहर धकेलने लगी। मैं उस वक्त रुई के एक मामूली ज़र्रे से भी कम वजन हो चुका था। मैं उसके सामने कोई मज़ाहमत न कर पाया और यूं ही लड़खड़ाता डगमगाता बाहर निकल गया। उस नशे से चूर कैफियत में उसे देखता रहा, यहां तक कि दरवाज़ा धड़ से बंद हो गया। फिर मैंने दरवाजे को बंद करने की आवाज़ सुनी और बेजान कदमों को घसीटता अपने कमरे में आया। मेरे बेड पे कुछ था जिसने मेरे दिमाग से वो नशा भग से उतार दिया। बहुत से शादी के दावतनामे जो शायद अम्मी इसलिए रख गई होंगी कि मैं अपने दोस्तों को दे सकूं। मैंने एक कार्ड उठाया। सालार का नाम उम्मे हानी के नाम के साथ लिखा देखकर मेरे अंदर चिंगारियां भड़क उठी। मैंने वहशियाना तरीके से कलम फेर कर उस नाम को स्याही में छुपाना चाहा। फिर उस पर अपना नाम लिखने लगा कि शायद मेरे दिल को कुछ सुकून मिले, मगर मैं उन चिंगारियों को एक ज्वालामुखी बना चुका था।